Okay, good morning, 9th standard. So we were doing chapter number 4, working of institution. So already we have revised two topics, that is the office memorandum and decision makers we have discussed. Now the last three topics which were left, which we are going to revise it again, is need for political institution, why do we need parliament, and the two houses of parliament, which we have discussed earlier also, but because there is a duration, there is a gap between 2 weeks, so that is why I'm just repeating the topics again, so that there should not be discontinuity between the revision topics which we have covered. So need for political institution, in this we have earlier I have explained you that why we need political institutions. We need a political institution because they just ensure security to the citizens and providing facilities for the education and health to all. Now political institution, they are responsible for the citizens who are under him, means the people of the country, and they also ensures that the proper facility of education and health should be given to them, because they are elected by the people of their country only. Means जो भी चुने गए हैं मिनिस्टर्स, वो हम द्वारा ही चुने गए हैं. दैट इज़ वाई दे whatever they are doing, they will be doing for us only. So वो इंश्योर करते हैं कि हमारी हेल्थ, हमारी एजुकेशन, हमारी सिक्योरिटी ठीक रहे, और उन चीज़ों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ भी बनाते हैं. Okay, so first point is why we need political institution, because these institutions ensure the security and the education and health facility for the people. Second point is they collect taxes and spends the money thus raised on administrations. You have seen that they collect taxes on various things, and that taxes they utilize for the benefit of the people, like infrastructure and all. So the third point is defense development and defense and development programs. The taxes which they collect, they utilize in the defense and the development programs. Means the road which you see every time, the road जो टूट जाते हैं, न्यू बनते हैं, लाइट्स एंड एवरीथिंग जो हमारे लिए बेनिफिट होता है, वो सरकार हमारे लिए करती हैं. सो थर्ड पॉइंट इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स. वेलफेयर स्कीम्स मीन्स यू हैव सीन इन MP देयर आर लॉट मेनी स्कीम्स फॉर द गर्ल्स, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर लाडली लक्ष्मी योजना. दीज आर द प्रोग्राम्स विच आर डन फॉर द गर्ल्स. सो दीज आर द वेलफेयर प्रोग्राम्स दे यूज टू डू. अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो क्या हो गया, हम कोई किसी के लिए सोचेगा ही नहीं, बिकॉज नो बडी केयर्स फॉर नो वन. हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या लोगों के बारे में सोचेगी, लोगों के बेनिफिट्स के बारे में, कि उनको किस तरीके से हम बेनिफिट दे सके, उनके बारे में सोचेंगे. सो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उसका एक ये भी काम है कि दे मेक वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पीपल. सम पीपल हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट टू टेक डिसीजन एंड हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़. कोई ऐसा होना चाहिए जो इन एक्टिविटीज़ के बारे में सोचे, इन एक्टिविटीज़ को फॉर्मुलेट करे. बिकॉज फॉर आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल ऑफ योर स्कूल ओनली. जैसे हमारे स्कूल में आपने देखा रोबोटिक्स की क्लासेस होती हैं. क्यों होती हैं? बिकॉज इन प्रेजेंट जनरेशन, अगर हम देखें तो we need such a school where modern technologies are used to make you understand the different points. I can say कि आपको अच्छी तरीके से सिखाने के लिए हमारे पास प्रॉपरली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जिससे कि आप बेटर तरीके से पढ़ सको. Earlier there were only blackboards. When we were studying, only blackboards were there, but now there are smart class in the school, so that आप ऑडियो विजुअल तरीके से भी पढ़ सके. सो दीज आर द न्यू थिंग्स विच एवरीबडी इज डेवलपिंग, सो दैट दे कैन गिव द बेस्ट टू द पीपल. सो हमारा स्कूल भी क्यों कर रहा है? वाई? बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट दैट दिस शुड अट्रैक्ट द पेरेंट एंड दे शुड गेट एडमिशन टू आवर स्कूल. एंड आई थिंक एवरी स्कूल इज़ डूइंग द बेस्ट. सब स्कूल अपनी तरीके से बेस्ट करते ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे आएँ. और अगर हम वही पुराने तरीक़ों से ही पढ़ा रहे होते तो
आई थिंक लोग वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पे बहुत बेटर तरीके से पढ़ाई होती हैं। सो दैट इज़ वाई लोगों को ये सोचना ज़रूरी है कि ये जो भी पार्टी रूल कर रही है, दे हैव टू डू गुड फॉर द पीपल, देन ओनली द पीपल आर गोइंग टू वोट फॉर देम। ओके, सो जो भी डिसीजंस बने, जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, पहला पॉइंट था कि दैट वाई वी नीड अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू ensure the security of the citizen, to provide facilities for education and health. Second point, collect taxes and spends the money raised on administration, defense and developmental programs. Point number 3, welfare schemes. It formulates and implements several welfare schemes. These are 3 points why we need a political institution. Now पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्यों ज़रूरी है, इसका चौथा पॉइंट ये है कि हमने चलो रूल बना लिए, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना, कौन करेगा इम्प्लीमेंट। अब मैंने ये सोच लिया ओके मुझे बनाना है, तो आई नीड सपोर्ट टू मेक समथिंग ना, मैं अपनी मर्जी से सोच के तो कुछ नहीं कर सकती, सो आई नीड समबडी टू हेल्प मी आउट। सो दैट इज़ वाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज़ देयर, सो दैट क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो डिसाइड कर सके। So to attend all these tasks, several arrangements are made in modern democracy. जो हमारी डेमोक्रेसी है, इन सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए they have made political institutions. Such arrangements are called institutions. So generally यहाँ पे अगर हम institution की बात करें, it's not the infrastructure, it's an organization where the people are given certain task. या इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग काम दिए गए, and they are doing that thing. For example, our school is an institution where the teachers, where the students, where the didis, everybody has a different work to do. The principal, the office management, they have the different work to do. अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो स्कूल भी नहीं चलेगा. So they play an important role in forming a institution. Okay, so the next topic is how the political institution works. So the first important member of political institution is the prime minister. So the prime minister and the cabinet are institutions and take all important policy decisions. Which policy should be adopted? कौन सी पॉलिसी बनाई जाएगी, कौन सी रखी जाएगी, वो are decided by the prime minister. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा व्हेन पेंडेमिक वॉज गोइंग ऑन, अ श्रमिक ट्रेन स्टार्टेड, श्रमिक ट्रेन स्टार्ट की गई थी फॉर द माइग्रेंट लेबर्स. सो उन्होंने बोला कि ओके द माइग्रेंट लेबर्स विच आर स्टक इन सेवरल एरियाज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स शुड बी गेट टू देयर होम. तो उन्होंने क्या किया, एक श्रमिक ट्रेन बनाई, नॉट द ट्रेन विच वी आर हैविंग, उन्होंने एक स्पेशल ट्रेन बनाई जिनसे उन लेबर्स, सिर्फ उन्हीं लेबर्स को उनके घर तक पहुंचाया जा सके. दीज आर द डिसीजन विच आर टेकन बाय द मिनिस्टर्स. द सेकेंड वन इज हाउ दे वर्क इज द सिविल सर्वेंट्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल for taking steps to implement the minister's decision. Whatever the prime minister had decided, उसको implement करने का काम किसका होता है, सिविल सर्वेंट्स का काम होता है. yes, we are going to do this. Third, the Supreme Court is an institution where disputes between citizens and the government are finally settled. So how the political institution work? The prime minister make decisions, the civil servants implement, and the Supreme Court, if there is a dispute between the people and the government, the disputes are being settled by the Supreme Court. ना आपने देखा होगा अभी जो सुशांत केस चल रहा है ना, उसमें आपने देखा होगा the two states were struggling, like Bihar and the Maharashtrian state, they were struggling for the CBI inquiry. So what they have done, they have done for the Supreme Court, and finally they have decided, the Supreme Court had decided that yes, the CBI inquiry will be done for the सुशांत murder case. तो ऐसी सिचुएशन में जब भी स्टेट्स के बीच में लोगों में डिस्प्यूट्स होता है तो द सुप्रीम हेड इज देयर, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट दैट डिसाइड्स, और जो उनका डिसीजन होता है एवरीबडी हैज़ टू फॉलो दैट. सो दिस इज द थिंग विच हाउ द इंस्टीट्यूशन वर्क, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड हाउ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर्क. एंड द थर्ड important subtopic of this main topic is in working with institution is not easy. Explain कि इंस्टीट्यूशन बन गया, अब उसमें जो काम हो रहा है वो एक इजी टास्क नहीं है. वाई? बिकॉज एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा मुझे स्कूल बनाना है, ठीक है, तो स्कूल बनाने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिसाइड दैट मेरी क्लासेस कितनी होंगी, क्लासेस में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, पढ़ाने का तरीका कैसा रखूँगी मैं, टीचर्स कितने होंगे,
और मैनेजमेंट कितने होंगे, ये सारी चीज़ें मुझे सोचनी पड़ेंगी। और उसको सोचने के लिए आई नीड मेंबर्स जो मेरी हेल्प करें डिसीजन में। आई अलोन कांट टेक ऑल द डिसीजंस, तो आई नीड मेंबर्स टू डिस्कस। और जब भी डिस्कशंस होते हैं, it takes time but it gives a good result. So working with institution is not an easy task because institution involves rules and regulations. हर एक चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलती हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी डिस्प्यूट्स हो, वी कैन से दैट इट इज़ देयर, इट इज़ अ रूल and we have to follow that rule. So institution rules and regulations पे चलती हैं. This bind the hands of the leaders. We cannot go beyond this because if it is the rule, we have to be in that rule only. We can't go, or we cannot say yes, this is the rule, we are not going to follow it. If we are not going to follow it, then punishments are also there. Institution involves meetings, committees and routines. Institutions में क्या होती है, मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज़ बैठती हैं और रूटीन्स होती हैं। मतलब हर दिन ऐसा नहीं कि आज मीटिंग बैठाई और आज के आज डिसाइड हो गए। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, because first it involves rules and regulation, second point it involves meeting, committees and routines, third it often leads to delay and complications. Why it leads to delay? Because मीटिंग्स को हमने किया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल बता, जैसे आज मैंने मीटिंग रखी कि यस यहाँ के लोग मीटिंग में आएंगे, और सर्टन जैसे ये भी पैंडेमिक चल रहा है, अगर ऐसा कुछ आ गया तो मुझे क्या, वो मीटिंग डिले करनी पड़ेगी जब तक वो लॉकडाउन ना हटे। सो इस तरीके से कभी कभार सिचुएशन हो जाती है, तो मीटिंग्स क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। उस बार भी कभी कभी क्या होता है, जो काम होना होता है वो थोड़ा सा देर में हो जाता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर वर्किंग इंस्टीट्यूशन विच अ इंस्टीट्यूशन फेसेस while making any rules and regulations. One might feel that it is much better to have one person take all decisions without any rules, procedures and meetings. कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि काश एक ही इंसान सारे डिसीजन ले, बट ऐसा नहीं होता। अगर एक इंसान डिसीजन लेगा तो बहुत सारी चीज़ें क्या होगा, छोड़ देगा। होता है ना, बहुत सारे लोग बैठते हैं तो उनके आइडियाज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको क्लास में एक टॉपिक दिया डिस्कशन के लिए, अगर मैं एक इंसान को बोला तो वो मे बी 2 या 3 पॉइंट्स ही बोलेगा। अगर वही मैंने एक ग्रुप बना दिया है तो मुझे सिर्फ 10 से ज़्यादा पॉइंट्स निकल के आएंगे, बिकॉज देयर आर 5 or 6 माइंड सिटिंग टुगेदर। एंड अगर एक दिमाग में 5-6 आइडियाज़ आ रहे हैं तो 5-6 बच्चे में कितने सारे आइडियाज़ आएंगे। सो हम ये सोचते हैं कि एक ही इंसान डिसीजन, बट अगर एक ही इंसान डिसीजन ले तो बहुत सारी चीज़ें वो क्या होता है, छोड़ता जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट नीड्स पीपल, मोर पीपल टू डिस्कस द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर मेड फॉर द पीपल। Some of the delays and complication introduced by institutions are very useful. कभी कभार डिले से क्या होता है, हमारे जो बहुत ही यूज़फुल काम है वो क्या हो जाते, बन जाते। क्योंकि डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि डिसीजंस हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। डिस्कशन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो उसमें डिले भी होगा, तो जब वो हमारे जो हम पे लागू होगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इट हैज़ टेकन सेवरल टाइम टू डिस्कस्ड, और इसलिए वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सो दैट इज़ वाई वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट एन ईजी वर्क। So I just want that you should read page number 60 from your book. There are many important topics also, because I am going to frame the questions from the book and from each and every line. So please read each and every line, underline. If you are having any doubt, you can ask me, you can message me also. Now we are on page number 61, the parliament. So I think a small hint of parliament I have already given you when we were reading page number 59, that Mandal Commission that were discussed in the parliament when both the houses were agreed that yes, we don't have any problem with the Mandal Commission, and then it was implemented to the people. So parliament में एक डिस्कशन होता है जो लोगों में डिस्कस होता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं एंड द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं, और वो डिस्कशन एक टॉपिक का होता है जिसपे लोग डिस्कस करते हैं, दे एग्री टू इट एंड देन इट इज़ पास थ्रू ऑन द पीपल। सो वाई पार्लियामेंट, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 marks. सो प्लीज़ गो थ्रू द बुक ऑल्सो एज वेल एज माई ऑडियो ऑल्सो। वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? क्योंकि पार्लियामेंट ही वो ऐसी जगह जहाँ पे क्या बनते हैं, लॉज बनते हैं। दोनों हाउसेस, बहुत सारे लोग डिफरेंट स्टेट्स के बैठे होते हैं, लॉज बनते हैं एंड दे आर एग्री टू दैट, एंड लॉज फॉर हुम, फॉर अस। सो लॉज बनते हैं,
और वो लॉज क्या होती हैं, लोगों के लिए बनाए गए होते हैं. दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स. इसलिए इसको और भी क्या कहा जाता है, लेजिस्लेचर, जहाँ पे लॉज बनते हैं. सो पार्लियामेंट क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं. सेकेंड, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट उन लोगों पे भी एक एक रूल कंट्रोल करता है जो हमारे देश को चला रहे होते हैं. जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर भी एक कंट्रोल करके रखता है, सो दैट दे शुड डू ऑल द थिंग्स इन अ बाउंडेशन और इन अ लिमिटेशन, उससे ज़्यादा ना जाए, तो उन पे भी कंट्रोल करके रखता है पार्लियामेंट. पॉइंट नंबर 3, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव. पार्लियामेंट everybody has to show yes how much money they are having. They have the budget भी पार्लियामेंट में ही बनाए जाते हैं, और हर एक गवर्नमेंट जो चला रही होती है उसको भी जितना उसके पास पैसे, उसका हर एक हिसाब भी दिया जाता है पार्लियामेंट को. पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉरम डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज़. ना पार्लियामेंट ही वो चीज़ है जहाँ पे हर एक इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है. सो वाई वी नीड पार्लियामेंट. फर्स्ट पॉइंट, laws are made in parliament. Point 2, have control who run the government. Third, control all the money that government have. Fourth, is the highest form of discussion and debate on public issues. So please student, go through page number 60 and 61 from your book. And the final topic, the two houses of parliament, I think I have told you in the form of distinguish between. मैंने कहा था, आपको होमवर्क भी दिया था, एंड सम ऑफ यू हैव सेंड द होमवर्क ऑल्सो दैट यू हैव टू राइट डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड द राज्यसभा. सो द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर लोकसभा एंड द राज्यसभा, एंड इट्स योर होमवर्क that you have to send me the differentiate between the Lok Sabha and the Rajya Sabha by reading the paragraph on page number 62, and after that I'll be explaining you. Okay, thank you class.